أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Before start, I would like to say one thing that since you are going to enter in the arena of practicing on law side, so I will refer you 3 books which are very much important. One, Kanun-e-Shahadat Order, 1984. सिविल हो या क्रिमिनल हो, आपने इसके ऊपर अगर आपका अबूर है तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे प्रैक्टिस में. तो कानून शहादत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न. आपको ये पता हो कि व्हाट इज एडमिसिबल एंड व्हाट इज नॉट एडमिसिबल इन लॉ, तो ये बहुत नेसेसरी है. तो बेसिक जो बुक है, तो सबसे पहले मैं रेफर करूंगा कानून शहादत ऑर्डर. सेकेंड, क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर समझना बहुत इंपॉर्टेंट. और डेफिनेटली जो सिविल साइड पे हैं उनके लिए सीपीसी, एंड सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन क्रिमिनल साइड तो मैं अपने ही उसकी बात करूंगा. तो सीआरपीसी को आप जो है उस पर अबूर हासिल कर लें. और तीसरी जो बुक है वो पुलिस रूल्स, पुलिस लॉज, बल्कि मैं कहूँगा उसमें पुलिस एक्ट है, उसमें पुलिस रूल्स हैं, उसमें पुलिस ऑर्डर है 2002 का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन क्रिमिनल साइड. हाउ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट्स? देयर आर 2 ways. One, through police, either in form of FIR or Kalandra. FIR is lodged under section 154 of CRPC. Whenever information of commission of cognizable offence is received by the station house officer, that is culminated into FIR and criminal process starts. In case of non-cognizable offences, non-cog offences, Kalandra is sent to the court and court takes cognizance of an offence and then proceeding starts in court. And third is private complaint. Second, I may say private complaint, which is filed by any private complainant. There are certain cases or certain enactments wherein there is no concept of registration of FIR and courts take cognizance on the basis of private complaints like illegal dispossession act, etc. But in other cases, whenever complainant or aggrieved person is not satisfied with the police investigation or a way in which police investigates the case, then they or complainant himself takes burden of proving the case against the accused and he file a private complaint before the court of competent jurisdiction, or it always starts from the court of magistrate. ये एक अलग सब्जेक्ट है. मर्डर केस की प्राइवेट कंप्लेंट जो है that is triable by the court of sessions, लेकिन वो कभी भी जो है कोर्ट ऑफ सेशंस में डायरेक्टली फाइल नहीं होती within the meaning of section 190 और section 193 of CRPC. तो तीसरा एक वे है, वो है कोर्ट बाय इट्स ओन भी इनिशिएट प्रोसीडिंग्स करती हैं, और वो वाले ऑफेंसेस हैं जो कि विच आर अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. लाइक कोर्ट में किसी ने झूठी एविडेंस दे दी, पर्ची 193 से लेके ये सेक्शन 230 है या 228 तक या 230 तक है मेरे ख्याल से. तो यहाँ तक जो भी ऑफेंसेस कमिट होते हैं तो वो क्योंकि कोर्ट के सामने होते हैं तो यूजुअली कोर्ट बिकम्स कंप्लेनेंट. प्राइवेट आदमी भी हो सकता है लेकिन कोर्ट भी हो सकती है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी. अगर कोर्ट खुद कंप्लेनेंट हो तो कोर्ट को एज ए कंप्लेनेंट ऑन ओथ पे डिपोज करने की जरूरत नहीं होती. तो व्हेनेवर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन प्रैक्टिस in the form of FIR. For example, any person is aggrieved by the conduct of some other person who, as per his information or his knowledge, he is accused of felony
تو وہ کیا کرے گا کہ کسی کے ساتھ جرم کمٹ ہو گیا, کسی نے راستہ روک دیا, کسی کے گھر میں مسلح افراد گھس آئے, تو he will move an application before the person in uniform, before the station house officer concerned. جس ایریا میں اس کا گھر واقع ہے, جس ایریا میں یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے, گھر واقعہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر گھر میں داخل ہو جائے, جس ایریا میں اوفینس کمٹ ہو جائے وہ اس ایریا کے پولیس اسٹیشن میں ایک اپلیکیشن دے گا, اور وہ اگر اپلیکیشن ہے کمیشن آف کوگنیزیبل اوفینس کی, تو اسٹیشن ہاؤس آفیسر از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو لانچ ایف آئی آر. اگر وہ ایف آئی آر لانچ نہیں کرتا تو ابھی ایک بہت اچھا پچھلے میرے خیال سے مور دین 1.5 decade 22AB جو ہے وہ اس کے ذریعے jurisdiction of sessions court is invoked for the purpose of registration of FIR, اور وہاں پہ پولیس کے کمنٹس مانگے جاتے ہیں, اور اس کے بعد سیشن جج صاحب appropriate order پاس کر دیتے ہیں for lodging of the FIR. Whenever FIR is lodged, اس کے بعد جو ہے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے he visits the place of occurrence, جہاں پہ وہ فرسٹ انسپیکشن نوٹس بناتا ہے, وہ جو پلیس آف اکرنس ہے اس کا ایک سائٹ پلان جو ہے وہ پریپیئر کرتا ہے, جو وٹنسز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتا ہے, اور اگر وہ اوفینس جو ہے وہ بیلیبل یا نان بیلیبل دونوں صورتوں میں ایکیوز اف اریسٹڈ, بیلیبل کی صورت میں جو ہے ایون اسٹیشن ہاؤس آفیسر اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ بھی ہی از آلسو کمپیٹنٹ کہ اس کے شورٹی باؤنڈ لے کے اس کو ریلیز کرتے ود ان دی میننگ آف 496 آف CRPC, لیکن یوزلی دے ڈونٹ ڈو سو. وہ کورٹ میں لے کے آتے ہیں ود ان 24 hours, اور اگر بیلیبل اوفینس ہے تو وہ ایکیوز کو جو ہے وہ شورٹی باؤنڈ کا آرڈر ہو جاتا ہے بائی دی کورٹ آف کنسرنڈ میجسٹریٹ, اور اگر نان بیلیبل ہے تو 167 میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر از گیون اپرچونٹی ٹو انویسٹیگیٹ دی کیس. تو بعض کیسز میں ریمانڈ, فزیکل ریمانڈ, جس کو ریمانڈ کسی کو تشدد کرنے کا نام نہیں ہے, ریمانڈ جو ہے وہ ہے فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن انڈر سیکشن 167 آف CRPC, جہاں پہ 14 days ٹائم 61 CRPC ریڈ وتھ سیکشن 167 15 days بنتے ہیں کہ 24 گھنٹے تک جو ہے وہ IO خود اپنے پاس رکھ سکتا ہے on his own discretion, اور after within 24 hours he is duty bound to present the accused before the court of area magistrate, جہاں پہ وہ further periodical remand ہوتا ہے. اگر accused کسی اور جگہ پہ arrest ہوا ہے, within province arrest ہوا ہے, تو session court اور concerned magistrate جو ہے کسی بھی area کا وہ اس کو transitory remand پہ relevant district میں بھیج دے گا. اگر within province arrest نہیں ہے, for example پنجاب کا accused arrest ہو گیا سندھ میں, تو اس کے لیے ہوم آفس ٹو ہوم آفس پرمیشن بھی ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد سیشن کورٹ اور میجسٹریل پرمیشن کے بعد جو ہے he will be transmitted to the concerned province or district or police station wherein offence has been committed. تو یہ تھوڑا سا میں ساتھ ساتھ الیبوریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ everything has its own exceptions. اب اگر وہ جو ہے offence, میں نے کہا کہ جس ایریا میں offence commit ہوا ہے تو وہاں پہ FIR لانچ ہوگی. اب اگر offense has been committed in parts, for example ایک آدمی کو کڈنیپ کیا اسلام آباد سے, اس کو انہوں نے ڈیٹین کیا KPK میں, پھر وہاں سے لے گئے اور کوئٹہ میں جا کے قتل کر دیا, کہاں پہ FIR لانچ ہوگی؟ Any one of you? کوئی ایک آدمی Under which provision? نہیں, جو FIR کے لیے ہے کہ کسی ایک جگہ پہ, اب 3 جگہوں پہ تو FIR نہیں ہوگی کہ اسلام آباد میں 365 کی FIR لانچ ہو جائے اور یا 364A کی ہو جائے, کوئٹہ پہ ادھر پشاور میں جو ہے وہ 342 کی FIR لانچ ہو جائے, اور کوئٹہ میں 302. اسلام آباد میں اسلام آباد پروویژن کون سی ڈیل کرے گی CRPC سے؟ CRPC
नहीं, ये तो penal provision CRPC, I'm talking about CRPC. देखिए सेक्शन 79 है और उससे ऑनवर्ड where act has been done or where consequences ensures, कहीं पे भी FIR लॉन्च हो सकती है. इन तीनों स्टेशंस पे में से किसी एक जगह भी FIR can be lodged by the aggrieved person under section 364A read with section 302 of Pakistan Penal Code. ये FIR लॉन्च होगी. आगे अगर 5 से कम बंदे हैं तो 34 होगा, उससे ज्यादा हैं तो 148, 149 Pakistan Penal Code will also be attracted in that scenario. तो एक FIR की रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन की जो कंप्लीशन का पीरियड है वो है 14 to 17 days, जिसमें इंटरम रिपोर्ट सबमिट करनी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने. जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट अगर हो सकती है तो कंप्लीट रिपोर्ट विल बी सबमिटेड, अदरवाइज इंटरम रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड विद इन 14 to 17 days. 14 days में अगर नहीं सबमिट कर सकता तो ही विल मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द कंसर्न्ड एरिया मैजिस्ट्रेट एंड विल सीक 3 days परमिशन दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 173 ऑफ CRPC. और उसके बाद जो है वो whenever said report will be submitted, then court will take cognizance. These reports are submitted before the courts of area magistrates, जहाँ पे court, all the courts or concerned area magistrate takes cognizance of said offence. तो ये जो offence का cognizance है ये provision deal करती है. Do you know any one of you? Section 190 और उससे ऑनवर्ड जो सेक्शन है 193 तक. There are 3 modes. मैं already I have told you 3 modes of taking cognizance. अब जो वो केस ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट है मैं उसकी आपके सामने बात करूंगा. If case is tribal by the court of sessions, तो concerned magistrate will take cognizance for the purpose of ascertaining whether this case is tribal by said court or the court of sessions. If said case is tribal by the court of sessions, then he will send up the matter to the court of sessions with denoting case since FIR has been lodged or the report under section 173 has been submitted under such and such sections which are tribal by the court of session, then matter will be transmitted to the sessions court. और फिर सेशन जज साहब जो हैं वो या अपने पास उस केस को रखेंगे या इसको मार्क कर देंगे टू द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज, जहां पे भी वो केस जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल. तो पहला स्टेप होगा इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस का अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ऑल्दो के जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है वो भी इंश्योर करती है कि एक्यूज को तलब कर लिया जाए और जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनकी हद तक प्रोसेस इशू और प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके कोर्ट ऑफ सेशंस में भेजते हैं. लेकिन मैं एक कॉमन सिनेरियो की बात कर रहा हूं. आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द मैटर. तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, एक्यूज को तलब कर लिया. उसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा 265C CRPC का. मैजिस्ट्रियल ट्रायल में 241A है. 265C CRPC wherein statements under section 161 or section 164 of CRPC, if any, are to be supplied to the accused, all the accused, free of cost. Number 2, first inspection note. Report under section 173 of CRPC and recovery notes. Those are to be supplied to the accused free of cost. And then matter will be fixed for framing of charge. Magisterial trial है तो उसमें 161, 164, 173 की रिपोर्ट प्रोवाइड होंगी. 265C का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि चार्जेस टू बी these copies are to be supplied to the accused free of cost.
اور اس کے بعد 7 days ٹائم ہوگا فار فریمنگ آف چارج. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکیوز کو جو میٹیریل دیا گیا ہے وہ ایکیوز اسے گو تھرو کر لے, اور چارج فریمنگ کے وقت جو اس نے ڈیفینس یا کوئی پلی لینی ہے اس کے لیے وہ کورٹ کو پراپرلی اسسٹ کر سکے اباؤٹ ہز پلی, ڈیفینس پلی. تو دین چارج ول بی فریمڈ اگینسٹ دی ایکیوزڈ آن نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. چارج کیا ہے؟ جو اس کے خلاف ایلیگیشن ہے. اس ایلیگیشن کی یا 173 کی جو رپورٹ سبمٹ ہوئی, جو پولیس نے سبمٹ کی, اس میں جتنا بھی انیبلنگ میٹیریل ہے 161, 164 یا باقی جو بھی پولیس انویسٹیگیشن کے تناظر میں جو بھی میٹیریل ہے, اس میٹیریل کے مطابق وہ جو ہے جو اوفنس میڈ آؤٹ ہوتا ہے پرائما فیشی, وہ چارج فریم کرے گی کورٹ اگینسٹ دی ایکیوز, تاکہ ایکیوز کو پتا ہو کہ میرا ٹرائل کس پروویژنس میں ہونا ہے, میں نے جرم کیا کیا ہے جو کہ کورٹ نے کوگنیزنس لے کے میرا ٹرائل سٹارٹ کر دیا. اب اس میں بھی چارج کین بی امینڈیڈ ایٹ اینی اسٹیج انڈر سیکشن 227 آف CRPC. اور اس میں یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل چارج فریم ہو گیا کسی ہینیس اوفنس میں لائک ڈکیٹی, رابری, مرڈر ایٹسٹرا. ڈیورنگ ٹرائل یہ ثابت ہوا کہ اوفنس اسی سے ریلیٹڈ, ڈسٹنکٹ اوفنس نہیں. اگر ڈسٹنکٹ اوفنس کا کمٹ ہونا پایا جائے گا تو چارج ول بی ریفریمڈ, لیکن اسی سے ریلیٹڈ اگر لیس ہینیس اوفنس جو ہے وہ کوئی مائنر اوفنس appears to have been committed, so there is no need of framing of charge. For example, 302 کا چارج ہے اور court reaches at a conclusion that in fact accused has committed an offence under section 324 of PPC, so there is no need of framing of separate charge against that person, کیونکہ lesser offence جو ہے اس کا وہ appear to have been committed. تو without framing of charge under section 324 of PPC, person can be convicted by the same court. لیکن اگر distinct offense ہوگا, for example 302 ہے لیکن ساتھ پایا گیا کہ یہ تو extortion بھی ہے بیچ میں, تو extortion جو ہے وہ 302 کی حد تک, 302 کی حد تک کوئی lesser offense نہیں ہے, that is a distinct offense, اور اس کے لیے جو ہے separate charge will be framed against the accused. After framing of charge, prosecution is given full right to adduce evidence of its own choice. جن witnesses کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ necessary ہیں to reach at a correct conclusion, ان کو prosecution بلا سکتی ہے. Whoever is acquainted with the facts of the case, یہ prosecution کا right ہے کہ کس sequence میں کس کس witness کو examine کروانا ہے. This is the absolute right of the prosecution. And accused is given full opportunity to cross-examine the said witness. After completion of prosecution evidence, statement of accused is recorded under section 342 of CRPC, جس میں جتنا انکریمنیٹنگ میٹیریل ہے وہ ایکیوز کو پٹ کیا جاتا ہے اور نہیں کیا گیا, it cannot be used against the accused. تو 342 جو ہے that is not an ample formality. اس میں آپ نے تمام انکریمنیٹنگ میٹیریل ایکیوز کو پٹ کرنا ہے اور ایکیوز کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے. جو میٹیریل فار ایگزامپل کوئی ریکوری ہے which has been effected from the accused, تو وہ جو ریکوری ہے اگر آپ 342 میں نہیں اس سے پوچھتے کہ you on such and such date led to the recovery of weapon from فلاں place or recovery of weapon etc, what do you say about it, اگر آپ اس کو وہ کنفرنٹ نہیں کرواتے کسی انکریمنیٹنگ میٹیریل سے, آپ اس کو اس انکریمنیٹنگ میٹیریل کو ایکیوز کے خلاف یوز نہیں کر سکتے. آفٹر
in 342 statements, question is put to the accused, two very mandatory questions. एक ये कि would you like to appear on oath in your own defense under section 340 subsection 2 of CRPC, or would you like to adduce any defense evidence? तो उस सूरत में 340 सबसेक्शन 2 की सूरत में एक्यूज अपने डिफेंस में एज ए विटनेस खुद भी पेश हो सकता है कि मुझ पे लगाया गया इल्जाम जो है वो झूठा है, दैट इज नॉट वेल फाउंडेड। तो उस सूरत में इन दैट इवेंचुअलिटी वो जो prosecution would be given right to cross examine the accused. अगर accused ये ऑप्ट करता है कि मैं अपने डिफेंस में पेश नहीं हो सकता, no adverse inference can be drawn against him, उसको ये भी राइट है कि अपने अलावा कोई और विटनेसेस इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन वो पेश करे बिफोर द ट्रायल कोर्ट, और उस सूरत में भी जो भी विटनेसेस आएंगे उन पे प्रोसिक्यूशन को राइट दिया जाएगा टू क्रॉस एग्जामिन दोज विटनेसेस। अब एक्यूज कहता है कि मैंने डिफेंस एविडेंस पेश नहीं करनी, और वो नील करता है, और यूजुअली यही किया जाता है क्योंकि इट इज द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस अगेंस्ट द एक्यूज। एक्यूज कैन टेक डाइवर्जेंट प्लीज, डाइवर्जेंट स्टैंस। ये नहीं हो सकता कि एक्यूज का ये प्ली जो है ये वीक है इसलिए उसको सजा दे दी जाए। तो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस जो है वो खुद साबित करना होता है एट एनी कॉस्ट इन ऑल इवेंचुअलिटीज। तो अगर एक्यूज जो है इन हिज ओन डिफेंस विटनेसेस पेश नहीं करता तो केस को ओपन प्रोसिक्यूशन करती है। अगर एक्यूज अपने डिफेंस में विटनेसेस पेश करता है तो फिर एक्यूज जो है वो ओपन करता है केस को, और प्रोसिक्यूशन रिबट करती है, रिप्लाई करती है, एंड अल्टीमेटली जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट। अब जजमेंट में भी अगर वो जजमेंट ऑफ एक्विटल है तो एक्यूज के आने की जरूरत नहीं है, उसके बुलाए बगैर भी वो जजमेंट अनाउंस हो सकती है। अगर वो जजमेंट ऑफ कन्विक्शन है तो फिर एक्यूज को बुलाया जाएगा इन कोर्ट, या उसके अगर उसकी एग्जेम्पशन हो चुकी है तो उसके प्लीडर को बुलाया जाएगा एंड जजमेंट वुड बी अनाउंस्ड। लेकिन अगर एक्यूज नहीं आता तो कोई भी जजमेंट विच हैज बीन अनाउंस्ड इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज वो इस वजह से इनवैलिड नहीं होगी कि इट हैज बीन पास्ड एंड अनाउंस्ड इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज। वो जजमेंट वैलिड होगी वेदर इट इज जजमेंट ऑफ कन्विक्शन तब भी। तो उसकी जजमेंट की जो वो वैलिडिटी है वो क्वेश्चन इस वजह से नहीं हो सकती कि एक्यूज वाज नॉट बिफोर द कोर्ट एंड इट वाज अनाउंस्ड इन हिज एब्सेंस। तो दिस इज ए प्रोसीजर ऑफ वन कंप्लीट ट्रायल, और उसके बाद अपील्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और एक्यूज इफ ही इज कॉन्विक्ट देन ही विल फाइल एन अपील बिफोर द अपीलेट कोर्ट। अगर इफ ही हैज बीन एक्विटेड देन अपील वुड बी फाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन साइड और एग्रीव्ड पर्सन within the meaning of 417 subsection 2 of CRPC। जो अगर मैजिस्ट्रियल ट्रायल है, ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल दी है सेशंस ट्रायल की जिसमें अपील लाइज टू द हाई कोर्ट। अगर मैजिस्ट्रियल ट्रायल है और एक्यूज जो है वो कॉन्विक्ट हुआ है तो अपील लाई करेगी सेशंस में। पहले इसमें सेंटेंस की लिमिटेशंस थी कि अगर 3 साल या 5 साल से ऊपर होगा तो हाई कोर्ट, कम होगा तो सेशंस कोर्ट। अभी कोई लिमिटेशन नहीं है। व्हाटएवर सेंटेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट वो उसके खिलाफ जो अपील लाई करेगी इट विल लाई बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस। और अगर जजमेंट ऑफ एक्विटल है बाय द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशंस, इन बोथ इवेंचुअलिटीज अपील वुड लाई बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 417 ऑफ CRPC। अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है वो सेशन कोर्ट में नहीं होगी, वो हाई कोर्ट में फाइल होगी। अब एक्यूज के क्या क्या राइट्स हैं? फर्स्ट राइट, इफ ही इज इनोसेंट और फैक्ट्स in the light of facts of the case, occurrence appears to be a doubtful,
his arrest can be suspended by the investigating officer. कोई जरूरी नहीं है कि हर कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक्यूज को जरूर गिरफ्तार किया जाए. जहां पे वर्ड नॉन कॉग्निजेबल है तो वहां पे वर्ड है सीआरपीसी में स्केड्यूल में shall not be arrested without warrant. जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहां पे है may be arrested. तो अरेस्ट को जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे तमाम लॉज ने जो है, ये अल्टीमेट स्टेप है which is to be taken by the investigating officer in order to curtail the liberty of any person. Even अगर किसी ऐसे केस में जिसमें accused allegations are well founded, लेकिन प्रोसिक्यूशन समझती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहता है कि इसमें अरेस्ट की जरूरत नहीं है, इवन देन ही कैन डेफर द अरेस्ट. यूजुअली दे डोंट, लेकिन वो कर सकते हैं अरेस्ट को डेफर. इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रा है वो होता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में डेफर होती है अरेस्ट. और यूजुअली व्हेनेवर एफआईआर इज लॉज्ड अगेंस्ट एनी पर्सन ही इज कॉट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और वो एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो पहला उसका राइट है, पहला जस्टिस देने का जो हक है वो आईओ का है. ही इज ड्यूटी बाउंड टू डू जस्टिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. वो उसके लिए ही कैन डिस्चार्ज द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी के उसके श्योरिटी बॉन्ड ले ले और उसको उसी वक्त डिस्चार्ज करते कि whenever court will require you will be bound to appear before the court. Second, whenever he is presented before the magistrate, then 167 read with section 63 of CRPC, court of magistrate is competent to discharge the accused. दूसरा है discharge of accused कब होगा? For example, FIR has been lodged against 4-5 accused persons. और किसी एक की हद तक ये आता है कि ये जो है ही इज नॉट इन्वॉल्व, तो फिर उसकी हद तक डिस्चार्ज रिपोर्ट आई. अगर ये होता है कि ये अकरेंस ही कमिट नहीं हुआ, दिस इंटायर अकरेंस इज डाउटफुल और इट हैज नॉट टेकन प्लेस, तो उस इन दैट इवेंचुअलिटी कैंसलेशन रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 24/7 पुलिस रूल्स के मुताबिक. वो एफआईआर ही कैंसिल होगी. अकरेंस हुआ है लेकिन एक्यूज जो है वो कोई इनोसेंट आदमी को लेके आगे हैं और उसको इम्प्लीकेट कर दिया है तो डिस्चार्ज होगा. लेकिन अगर अकरेंस हैज नॉट टेकन प्लेस तो उस इवेंचुअलिटी में कैंसलेशन रिपोर्ट प्रिपेयर होगी. थर्ड, जो कंसर्न कोर्ट है 173, उसमें कंसर्न कोर्ट भी एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है आफ्टर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी. अगर कोर्ट देखे कि इसकी हद तक तो कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं है, लेकिन इवन देन ही इज प्लेस्ड इन कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, तो तब भी उसको कोर्ट भी डिस्चार्ज कर सकती है. और फाइनली है 249A और 265K of CRPC that at any stage of the proceedings before the trial court, अगर accused ये एलेबोरेट करने में कामयाब हो जाए कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन एंड फ्यूचर ट्रायल इज एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, तो कोर्ट कैन एक्विट द एक्यूज्ड एट एनी स्टेज. तो जितना भी हमारा पीनल लॉ और प्रोसीजर्स हैं, दोज रिवॉल्व अगेंस्ट द राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्संस. ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन की टू प्रूव द केस एंड ऑल राइट्स आर विद द एक्यूज्ड. Any question from your side? कोई क्वेश्चन आप लोग कोई करना चाहेंगे? मैंने प्रिसाइज सा आपको प्रोसीजर समझा दिया अबाउट द ट्रायल ऑफ केसेस. अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग क्रिमिनल मैटर तो यू आर फ्री टू आस्क. थोड़ा सा बना सकते तो बेल के ऊपर थोड़ा सा जैसे आप. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पुलिस अपनी चालान वगैरह पेश करती है 14 डेज या 70 डेज में वो नहीं करती, इनकम्प्लीट है, या जो भी फाइनल चालान उसको कितना टाइम दिया जाएगा फाइनल चालान पेश करेगी? देखिए, फाइनल जो चालान है, एक तो फाइनल चालान का कोई लफ्ज लॉ में यूज नहीं हुआ. जो 173 की रिपोर्ट है, चाहे वो इंटरम है, वो मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट 14 to 17 days टाइम
is there, wherein they can be asked to submit, they are bound to submit the report. अगर वो नहीं करते तो concerned area magistrate को application can be filed, और वो फिर बाउंड डाउन करते हैं आईओ को कि अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका क्रक्स इन फॉर्म ऑफ इंटरम रिपोर्ट वो उसमें लिख देते हैं कि नामुकम्मल है, तो वो सबमिट कर दें. और बाकी जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है केस की, कोई एक्यूज अरेस्ट होता है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद उसकी हद तक 173 की रिपोर्ट आ जाएगी. कोई 5 साल बाद अरेस्ट होता है, 10 साल बाद होता है, तो इवन एट दैट टाइम 173 रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड टू हिज एक्सटेंट. तो इसके लिए कोई टाइम नहीं है. लेकिन जो एक्यूज ट्रायल फेस कर रहे हैं उनका ट्रायल हॉल्ट नहीं होता, उसको कंटिन्यू किया जाता है. एक सूरत में हॉल्ट होता है अंडर सेक्शन 249 कि अगर कंप्लेनेंट जो है उसके वेयर अबाउट्स पता नहीं है, ही इज नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट, ही इज नॉट, या उसके कोई पता नहीं है, कोर्ट प्रोसेस इशू करती है, पता चलता है कि वो तो कहीं चला गया है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस सूरत में जो है वो फाइल को कंसाइन किया जाता है. ना एक्विटल होती है ना कन्विक्शन होती है, वो इन सर्टेन इवेंचुअलिटी होता है. So far as bail is concerned, there are 2 provisions, and now as per judge-made law, 3rd provision is also very important. 496 CRPC which deals with bailable offences. जो bailable offences हैं, उनकी कैटेगरी CRPC के स्केड्यूल में मेंशन्ड है कि ये ऑफेंसेस बेलेबल हैं. अगर स्पेशल लॉ है तो उसके लिए जो 2 साल से कम या 2 साल तक की सजा के ऑफेंस, नहीं 3 इयर्स है मेरे ख्याल से, 3 इयर्स तक के ऑफेंसेस हैं, those are considered to be bailable. लेकिन अगर उस लॉ में प्रोवाइडेड है कि ये ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, तो देन those would be treated as non bailable. लेकिन अगर कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है तो फिर 3 साल तक की जो सजा है स्पेशल ऑफेंसेस में इनेक्टमेंट में, तो वो बेलेबल परज्यूम होंगे. 497 डील्स विद नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. फर्स्ट 497(1) of CRPC, जिसमें there are 2 kind of non bailable offenses. There are 2 kinds. One which comes within the ambit of non-prohibitory clause. Non-prohibitory clause less than 10 years. Prohibitory clause 10 years or upwards. तो अगर कोई एक्यूज्ड है नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफेंसेस का, तो उसको जो बेल ग्रांट होगी एज ए मैटर ऑफ रूल होगी, नॉट एज ए मैटर ऑफ राइट. उसकी सर्टेन एक्सेप्शंस हैं इन जजमेंट लॉ. अब अगर वो एक्यूज है प्रोहिबिटरी क्लॉज के ऑफेंसेस का, तो फिर बेल जो है, जो रूल जेल एंड नॉट बेल इज अप्लाइड. इसकी भी एक्सेप्शंस हैं कि इफ समवन इज माइनर, सिक और इनफॉर्म पर्सन और फीमेल एक्यूज्ड, तो इवन देन she or he is entitled to get the concession of bail, चाहे वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता हो और whatever is the nature. वो प्रोहिबिटरी क्लॉज की एक्सेप्शंस हैं कि अगर वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में ऑफेंस फॉल करता है, लेकिन जो एक्यूज है वो सिक और इनफॉर्म पर्सन है, इन्फर्मिटी है, वो माइनर है या फीमेल एक्यूज है, तो तब भी उसको बेल ग्रांट की जा सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट शी इज अ फीमेल. यही काफी है रीजन within the meaning of 497(1) of CRPC. जो 497(2) है, ज्यादा ये अप्लाई होता है, that is called further inquiry. चाहे ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता हो या नॉन प्रोहिबिटरी में फॉल करता हो, अगर वो केस फर्दर इंक्वायरी का है तो देयर इज नो एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन लॉ एक्सेप्ट टू ग्रांट हिम बेल. अब फर्दर इंक्वायरी क्या है कि इफ इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस liability of accused cannot be fixed beyond shadow of doubt. तो अगर कोई एक शायबा भी ऐसा मौजूद है in the light of material available, तो that is called case of further inquiry and person is entitled to get the benefit of bail as a matter of right, irrespective of the fact कि वो 10 लोगों का कत्ल है या 20 लोगों का मर्डर हुआ है, टेररिज्म है, whatever. तो खैर टेररिज्म में 21D आता है जिसके अपने जो है वो उसमें भी एलिमेंट ऑफ फर्दर इंक्वायरी को डिस्कस होता.
तो दिस इज द सेकंड प्रोविजन. तीसरी है स्टेशनरी ग्राउंड, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस में स्टेशनरी ग्राउंड जो है या डेथ सेंटेंस के केसेस में 2 इयर्स है. और अगर 2 इयर्स तक एक्यूज का ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, 1 साल या 2 साल, ट्रायल कंप्लीट नहीं होता विदाउट एनी फॉल्ट ऑन हिज पार्ट, देन वर्ड शेल हैज बीन यूज्ड कि इसको बेल होगी. अगर एक्यूज के पार्ट पे डिले हो तो फिर ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ थर्ड प्रोविजो. अब थर्ड प्रोविजो की भी अपनी एक्सेप्शंस हैं. अगर एक्यूज के पार्ट पे डिले नहीं है और 2 साल मर्डर केस है, उसके पार्ट पे डिले नहीं है इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, 2 साल का पीरियड भी हो चुका है, लेकिन अगर ये इन 3 कैटेगरीज में फॉल करता होगा तो फिर भी बेल नहीं हो सकती. हार्डन, डेंजरस और डेस्परेट क्रिमिनल. ये जो 3 कैटेगरीज हैं, अगर ये इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आएगा तो उस सूरत में भी उसको बेल नहीं दी जाएगी, इवन ऑन स्टेशनरी ग्राउंड्स. तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो दैट इज नॉट प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी, that is a concept of pre-arrest bail, which is always filed under section 497, read with section 498 of CRPC. तो ये हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन केस से स्टार्ट हुआ कि अगर क्वेश्चन ये आया कि अगर कोई आदमी who is maliciously entangled for to achieve certain objectives, चाहे वो political considerations हों, कोई और कंसिडरेशंस हो, अगर वो मुल्जिम बन जाता है तो उसने क्या जरूरी गिरफ्तार होना है? वो पुलिस वाले की स्वीट विल पे हो जाएगा, हु इज एक्टिंग अंडर सर्टेन डिजाइन्स एंड इंटेंशंस. तो उसके लिए फिर कोर्ट्स केम फॉरवर्ड और उन्होंने ये जजमेंट लॉ है, फिर कोर्ट्स जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं व्हाइल ग्रांटिंग हिम एड इंटरम बेल, जिसको प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं. तो वो प्री अरेस्ट बेल जो है कोर्ट्स ग्रांट करती हैं, जो कि बेस्ड ऑन जजमेंट लॉ है, और इसकी जो प्राइमरी कंसिडरेशन है वो है मेलाफिडे इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन. केस इज बेस्ड ऑन मेलाफाइड, और मेलाफाइड की जो है वो डाइवर्जेंट प्लीज आप ले सकते हैं कि इस केस में क्या मेलाफाइड है. ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, हर केस के अंदर जो मेलाफाइड होगी उसकी डिफरेंट डायमेंशंस होंगी, उसका डिफरेंट सिनेरियो होगा, उसके डिफरेंट जो है वो चीजें होंगी. अगर आप ये सब्सटेंशिएट कर लें कि इसमें मैलिस क्या है ऑन दी पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, देन यू आर एंटाइटल्ड टू अर्न दिस कंसेशन. लेकिन अभी जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि इवन क्वेश्चन ऑफ फर्दर इंक्वायरी कैन बी डेल्ट विद एट द टाइम ऑफ डिसीजन ऑफ प्री अरेस्ट बेल. So this is the concept of bail in as per our law. Any other question, please? Please. Accused का arrest हो गया और 2 years 3 years he's been arrested, उसका ट्रायल चल रहा है, केस हो रहा है. प्राइमा फेशी केस उसके ऊपर नजर आता है कि भाई वो ठीक है बनता है, लेकिन सारे कंक्लूजन के बाद उसका एक्विटल हो जाता है. बट आपने कहा सारे एक्यूज के पास जितने हकूक हैं वो एक्यूज के पास हो, तो एक्यूज का इस सिलसिले में क्या हक है कि भाई आपको 2 साल आपने जेल में करना चाहिए? देखिए, इसके लिए एक प्रोविजन है 250 सीआरपीसी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 250 1898 में ये इनेक्टमेंट हुई और 1898 में ये उन्होंने सफिशिएंट समझा कि अगर एक्यूज जो है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है उसकी हद तक और वो एक्विट होता है अल्टीमेटली, तो प्रोसिक्यूशन कैन बी बर्डन्ड विद फाइन. मेरे ख्याल से अप टिल 25,000 है शायद. तो लेकिन आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सू कर सकते हैं टू द कंसर्न्ड प्रोसिक्यूशन, जो भी whoever इज रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो प्राइवेट कंप्लेनेंट है, चाहे वो स्टेट है या जो भी है, उनको आप सू कर सकते हैं अंडर टॉट. लेकिन जो सीआरपीसी का प्रोविजन है वो आज के दौर में, उस वक्त तो
آپ خود سوچ لیں 18ویں صدی میں 25,000 یا 5,000 کی کیا ویلیو ہوگی. تو اس وقت انہوں نے اتنا بڑا فائن رکھا. آج تک ہم نے اس کو امینڈ نہیں کیا کہ آج یہ 5 کروڑ تک ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایسی صورت ہوتی ہے. اور اس کو جو ہے اٹ شوڈ بی مینڈیٹوری آن دی پارٹ آف دی کورٹ کہ جب بھی میلیشیس پروسیکیوشن نظر آئے تو کورٹ باؤنڈ کر دیا جائے کورٹ کو. وہ باؤنڈ بھی نہیں کیا ہوا 250 نے, لیکن 250 سی آپ کی سیز کیا. سر اگر کسی کیس میں ایک کنوکٹڈ پرسن ہے اور وہ پروکلیمڈ ہے تو کیا اس کو پروٹیکٹیو بیل اگر دی جاتی ہے تو وہ کون سے لا کے ذریعے دی جاتی ہے, اور کیا پھر وہ جو آلریڈی کنوکٹڈ پرسن ہے پروکلیمڈ افینڈر ہے تو اس کی جو پروٹیکٹیو اگر بیل دی بھی جاتی ہے تو ابھی تک میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا ہے کہ اس میں فردر جو ہے وہ ایکسٹینشن کہیں میں نے نہیں پڑھی. تو یہ کس پروویژن کے تحت دی جاتی ہے جو پروکلیم؟ دیکھیں لا میں کسی جگہ پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں ایک آپ کو امبریلا پروویژن بتاتا ہوں, دیٹ از 561A آف CRPC. ہائی کورٹ کی پاس ہیں کسی کیس میں بھی دیکھے ٹو پریونٹ دی ابیوز آف پروسیس آف لا, جہاں پہ کورٹ دیکھے تو کورٹ جو ہے کوئی بھی ایسا اپروپریٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ جس سے وہ ابیوز آف پروسیس نہ ہو. تو کسی آدمی نے اگر پروٹیکٹیو بیل لینے کا, چاہے وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو کورٹس کو لبرلی الاؤ کرنا چاہیے. وہ ہی از گوئنگ ٹو سرنڈر بیفور دی میجسٹی آف لا. الٹیمیٹ آرڈر تو جو بھی ہوگا, لیکن ایک ایکیوز جس کو آپ کا پروسیس اریسٹ نہیں کر سکا ڈیو ٹو اینی ریزن, اب وہ ایکیوز والنٹریلی ہی از آپٹنگ ٹو اپیئر بیفور دی کورٹ, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں بیفور دی کورٹ. تو کورٹس کیا کہیں کہ نہیں تم ہمارے سامنے سرنڈر نہیں کرو گے, تو وہ اس کو اجازت ملی. ویسے اس میں جو ایک ججمنٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک کیس تھا, اس میں کنوکٹ نہیں تھا شرجیل میمن ورسز دی اسٹیٹ. ہی واز ایکیوزڈ, اس کے خلاف ریڈ وارنٹ تھے, پروکلیمیشن تھا, نیب کا کیس تھا اور کیسز. ہی فائلڈ ریٹ پٹیشن کہ جی میں آنا چاہتا ہوں, میں ٹرائل فیس کرنا چاہتا ہوں, میں میلا فائٹ پروو کرنا چاہتا ہوں دی پارٹ آف پروسیکیوشن, تو مجھے آنے کی اجازت دی جائے. تو کورٹ نے الاؤ کیا کہ یہ تو والنٹریلی آ رہا ہے, تو اس کو کیوں روکیں گے کہ نہیں تم کورٹ کے سامنے نہ آؤ. تو اس میں صرف ڈفرنس یہ ہے کہ وہ کنوکٹ نہیں تھا, he was accused and later on he appeared, اور اس کی بعد میں بیلز اور جو بھی پروسیس ہوا وہ سارا پروسیس ہو گیا. تو یہ جو پارٹس ہیں یہ 561A CRPC میں ہیں. اب کورٹ جو سینٹنس سسپینڈ کرتی ہے وہ 4 to 6 میں کرتی ہے. جو گورنمنٹ کے پاس پارس ہیں سسپینشن آف سینٹنس کی وہ 401 میں ہیں. وہ سینٹنس کو سسپینڈ کر کے میٹر ریفر کر دیتے ہیں ٹو دی کنسرن کورٹ. آگے کورٹ نے اس کو اگر سسپینشن آرڈر کو برقرار رکھا تو وہ سسپینشن ول بی ریکن, اگر برقرار نہ رکھا تو دیٹ پرسن ول بی کاٹ. سر اس میں ایک سپلیمنٹری میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں. میں جو بیسک میرا کوشچن تھا وہ یہی تھا کہ ایک کنوکٹڈ پرسن جو آلریڈی اریسٹڈ ہو اور کسی وجہ سے, چاہے وہ سکھ ہے یا چائلڈ ہے, میں سکھ کے اوپر ہی وضاحت چاہتا ہوں, اس کو بیل دی گئی ہو اور ود ان اسپیسیفک ٹائم وہ نہیں ہو اور پھر وہ پروکلیم کرنا, تو اسپیسیفکلی اس میٹر میں پھر اگر وہ پروٹیکٹیو بیل دی جاتی ہے تو وہ کون سی پروویژن ہے؟ 561A کو انووک کیا گیا ہوگا. جی میں نے وہ آرڈر نہیں پڑھا, لیکن ڈیفینیٹلی 561A کو انووک کیا گیا ہوگا along with Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. جو بیسک پروویژن ہوگی وہ 561A ہوگی, جو امبریلا پروویژن انہیرنٹ پارٹس ہیں ہائی کورٹ کی. سر اس میں فردر ایک جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا پھر اس پروٹیکٹیو بیل میں فردر ایکسٹینشن بھی کسی پروویژن کے تحت دی جا سکتی ہے؟ نہیں, جب پروٹیکٹیو بیل ہوگی تو ایکسٹینشن تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے. وہ تو بیسک جو ہے وہ اس کو کورٹ نے اجازت دے دی ٹو اپیئر بیفور دی کورٹ, اور اس کے بعد کورٹ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اس سسپینشن کو. باہر ہے
थैंक यू। सर एक मुलजिम को एक सूबे से दूसरे सूबे तक और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट केस है। देखिए डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो ये सेक्शन 167 है और उसके बाद जो है वो सेक्शन 86 और उसके साथ की जो प्रोविजंस हैं वो सारी अप्लाई करती हैं। जो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक जो एक्यूज की ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफर ऑफ एक्यूज पर्सन एक्ट के मुताबिक होती है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ एक्यूज पर्सन एक्ट। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी उसमें फॉल वैसे करता है ट्रांसफर ऑफ एक्यूज पर्सन एक्ट में। काफी अरसे से मैंने पढ़ा नहीं इसको, लेकिन विद इन प्रोविंस home office to home office permission and then permission from the concerned area magistrate in sessions, and then within district there is no need of home office, within province there is no need of home office permission from home office. Please. दो क्वेश्चन है। एक तो जब हम बेल फाइल करते हैं उनको बिफोर मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पे मतलब फिक्स हो जाती है कि इस डेट पे आप आ जाए, तो जब जाते हैं तो कहते हैं पुलिस रिपोर्ट नहीं आई, तो नेक्स्ट डे आते हैं, नेक्स्ट डे जाते हैं तब भी कहते हैं पुलिस रिपोर्ट नहीं आई, तो नेक्स्ट डे आते हैं, तब तक मतलब कि कितने डेज तक वो टाइम ले सकते हैं कि पुलिस रिपोर्ट प्रेजेंट करें। देखिए वैसे तो जो मजिस्ट्रेट्स सख्ती करते हैं, सुब्रा बीबी केस में थोड़ा सख्ती करते हैं मजिस्ट्रेट साहिबान और तमाम कोर्ट्स के पुलिस को बाउंड डाउन किया जाता है कि वो रिपोर्ट लाजमी पेश करें, अपना रिकॉर्ड पेश करें केस का। और रिकॉर्ड अगर पेश नहीं करते तो कई दफा जो है वो उसी दिन का ऑर्डर होता है कि आईओ को बाउंड डाउन करते हैं और सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाते हैं कि रिकॉर्ड समेत आप आ जाएं, और कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं या एक आध दिन का डेट हो जाती है। ये नहीं होता कि 10 दिन के लिए जो है पुलिस के हमारा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है और हम पेश नहीं करते। इट नेवर हैपेंस। जहां तक सुगरा बीबी केस का ताल्लुक है तो पहले लॉ में काफी डाइवर्सिटी थी, एक ही अक्रेंस की कई एफआईआर लॉन्च होती थी, हो सकती थी। जैसे मुर्तजा भट्टो मर्डर केस हुआ, फर्स्ट एफआईआर वाज लॉन्च्ड बाय द पुलिस। जो उनकी जो बेवा थी उन्होंने कहा कि ये हमारा वर्जन नहीं है, ये हमारा स्टैंस ही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिस एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू स्क्रीन द रियल ऑफेंडर्स। तो फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इनके कंटेंशन को सामने रख के एफआईआर लॉन्च करें जो ये एप्लीकेशन दें। पुलिस ने फिर चालाकी की और उन्होंने एक मुलाजिम को पकड़ा, उसको अंडर प्रेशर किया, उससे एप्लीकेशन लेके एफआईआर लॉन्च दूसरी कर दी। अगेन रिट पिटीशन वाज फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट और ये कहा गया कि ये भी हमारा स्टैंस नहीं है, मेरा स्टैंस तो ये है, इस बेसिस पे एफआईआर हो। देन ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ थर्ड एफआईआर वाज पास्ड। फिर सेकेंडली देयर वर क्रॉस वर्जन्स, और क्रॉस वर्जन्स की भी जो हैं वो दो एफआईआर होती थी, एक फर्स्ट एफआईआर और एक पर्टेनिंग टू क्रॉस वर्जन। तो इस सिनेरियो को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुगरा बीबी केस में टैकल किया और कहा कि एक इंसिडेंट का एक ही एफआईआर होगी, जो क्रॉस वर्जन होगा वो जिमनीज में पुलिस ऐड करेगी, उसको डायरी में लिखेगी, अपने जो पुलिस डायरीज हैं और जो थाने की जो डायरीज है रोजनामचा है उसमें इंदराज करके उसको ऐसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक अकरेंस की एक से ज्यादा एफआईआर लॉन्च नहीं होंगी। तो इन नटशेल दिस इज ए सुगरा बीबी केस। और सेकेंडली उसमें ये भी होल्ड किया कि इन एवरी कॉग्निजेबल केस इट इज नॉट नेसेसरी टू अरेस्ट एनी एक्यूज पर्सन जब तक ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस और वो सारी चीजें ना हो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ए सुगरा बीबी केस बेसिकली। पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 है, मेरा एविडेंस 585 है शायद। एविडेंस के हवाले से सवाल है कि अगर पुलिस किसी शख्स का रिमांड ले लेती है तो उसके बाद आपने कहा कि वो रिमांड का मतलब तशद्दुद नहीं है, तो अगर कोई ऐसे, क्या वो शख्स के सारे आर्टिकल्स की पोजेशन भी ले सकती है? अगर किसी ऐसे आर्टिकल की पोजेशन लेती है जो इलीगली वो लेती है और उससे कोई सर्च करती है और वो एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश करती है, तो क्या वो एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा वो एविडेंस? देखिए, एक आदमी अरेस्ट हो गया, वो अपने घर आ रहा था, ही वाज वांटेड टू कंसर्न आईओ। तो उसके जो जामा तलाशी से उसकी जो पर्सनल सर्च होगी उसमें जो आर्टिकल्स होंगे पुलिस वो पोजेशन में ले लेगी, बट दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। वो तो सिर्फ होगा कि ये हमने इसको अरेस्ट किया, वो उन आर्टिकल्स के साथ तो उसको जेल नहीं भेजा जा सकता। वो मानतन थाने का जो मालखाना है वहां पे होते हैं और एक्यूज जो है
उसको स्पुर्दारी पे और एप्लीकेशन दे के वो ले सकता है। सेकेंड आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि विच आर कनेक्टेड विद द ऑफेंस। फॉर एग्जांपल पिस्टल से किसी ने गोली मारी या चोरी करके कोई सामान किसी ने चोरी कर लिया, तो वो जो स्टोलन गुड्स हैं या वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस है दैट इज कंसर्न विद द ऑफेंस, तो उसको जो है उसकी रिकवरी होगी अंडर आर्टिकल 40 और उसको वो पेश करेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव द केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो ये डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स हैं विच आर टेकन इनटू पोजेशन बाय द पुलिस। लेकिन अब उसके जामा तलाशी या पर्सनल सर्च से कोई ऐसा आर्टिकल रिकवर नहीं हुआ, लेकिन जो भी रिकवर हुआ इट विल बी टेकन इनटू पोजेशन और वो एक एप्लीकेशन से पुलिस रिपोर्ट मांग के उसको वापस कर दिया जाता है जो भी हो। और दूसरे जो आर्टिकल्स हैं वो यूज होते हैं एट द टाइम ऑफ एविडेंस, उनको प्रेजेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ एविडेंस, एग्जिबिट होते हैं और केस प्रूफ होता है। थैंक यू जी।